तो आई होप सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबने पढ़ लिए थे, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लास 12th के लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. एंड व्हाट इज दैट? बिफोर आई come to that particular topic respectively, I would like to ask a simple question from everybody. Children, what is the journal entry for cash sale of goods? Cash account debit to sales. Very good. Cash account debit to sales. Simple as that. What is the journal entry, children, for goods bought for cash, children? It's purchase or purchases account Debit to debit cash. to cash. What is the journal entry, children, for wages paid? Wages account debit to cash. Wages to cash. Wages account debit to cash. And if I say that this is a cash account, this is, children, what is called as purchases account. This is called as wages account. So first entry would be posted in cash account as what, children? Cash to sales. The second entry would be posted as buy purchase, and the third entry would be posted as what? Buy wages. In purchase account, Wages. second entry would be posted as what, children? To cash. And this third entry in wages account is also posted as what, children? To To cash. सबको यहां तक समझ में आ गया? अब एक छोटा सा गेम प्ले करेंगे चिल्ड्रन. बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है. If I say that the journal entry in cash account which was posted, हमें नहीं पता क्या एंट्री है, was to sales. कैश अकाउंट में चिल्ड्रन अगर टू सेल्स लिखा है, क्या जर्नल एंट्री पास हुई होगी? What would have been the Cash to sales. cash account debit to sales? If I ask that the posting in cash account is buy purchases, कैश अकाउंट में पोस्टिंग है बाय परचेजेस, तो क्या जर्नल एंट्री हुई होगी इसकी चिल्ड्रन? Purchase to cash. एंड इफ आई से कि कैश अकाउंट में आपने बाय वेजेस लिखा होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? Wages to cash. डेबिट टू कैश. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आपको मैं पोस्टिंग्स शो कर दूं चिल्ड्रन, तो आप जर्नल एंट्रीज बना लेंगे. Yes, sir. बात समझ में आ गई? कुछ वैसा ही टेक्निक यहाँ पे फॉलो होगा, बट क्यों फॉलो होगा ये जानना बहुत जरूरी है. This is a trading account which is visible on the screen, children. I repeat, this is the trading account which is visible on the screen. इस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में न्यूमरस थिंग्स हैव बीन पोस्टेड एंड क्रेडिट पे भी न्यूमरस थिंग्स हैव बीन पोस्टेड. सो दिस व्हाट यू हैपन टू सी चिल्ड्रन इज अ लेजर और अ जर्नल. ये लेजर है चिल्ड्रन या जर्नल है? इट्स अ लेजर. तो इसका भी तो जर्नल बना होगा, यस और नो चिल्ड्रन? Yes, sir. तो जर्नल बना होगा, तो उस जर्नल एंट्रीज को कभी कभी आपसे टेस्ट किया जाएगा. 11th में बहुत कम आता है, 12th में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. सो चिल्ड्रन, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपने टू ओपनिंग स्टॉक या टू परचेज लिखा है, कैन एनीबॉडी गेस कि क्या एंट्री रही होगी? Trading to opening stock. Trading account debit to opening stock. If I say in trading account, if you have written two wages, what would have been the journal entry, children? Trading account debit to wages account. Wages. समझ में आ गया क्यों मैंने वो लॉजिक अप्लाई करवाया आपसे? Yes, sir. Trading account it is written by closing stock, children, क्या रही होगी जर्नल एंट्री? Closing Closing stock stock to trading account. trading to closing stock. और अगर बाय सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट में चिल्ड्रन, तो क्या एंट्री रही होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? चिल्ड्रन, Yes, sir. understood this much? Yes, sir. So please put the heading in your copies and write it as closing entries. So कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. Just have a 2-line meaning written first, and then we'll put closing entries कैसे लिखनी है. बहुत सिंपल है.
Just start writing. It refers to the set of journal entries recorded in journal proper, which are subsequently used for postings in trading and PL account. They are as below. Be quick to this. So we have two columns to be prepared, children. In the left column, write down for items in trading account, and right side you can write for items in profit and loss account. And left side, children, for the items in profit and loss account. So we have two sides, children, in trading and PL, isn't it? Children, isn't it? Yes, sir. So थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टोरी में ट्विस्ट नजर आएगा बच्चों। सो सेंटर में आप लिखेंगे सबसे पहले फॉर डेबिट। एवरीबडी नोस चिल्ड्रन की ट्रेडिंग की डेबिट में क्या क्या आता है? Yes, sir. एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट टू आई एम राइटिंग द कैटेगरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक एक करके मैं इनको डिफाइन नहीं कर रहा हूं। और एक चीज बहुत ध्यान से मेरे को बताइए बच्चों, सेल्स रिटर्न किस साइड पे आप लिखते हैं? चलो Credit. गलत आंसर। आप क्रेडिट में लेस करते हैं, लिखते नहीं है। तो अल्टीमेटली Yes. उसका इफेक्ट तो डेबिट में ही आया ना। आपने क्रेडिट में कुछ हटाया तो वो किधर सो कॉल्ड एम्फेसिस डाल रहा है? डेबिट में। तो आप लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न। अब सर परचेज रिटर्न क्यों नहीं लिखे? परचेज रिटर्न हम डेबिट में लिखते कहाँ हैं? हम तो डेबिट में उसको माइनस करते हैं ना बच्चे। तो सर क्रेडिट में इसलिए जाएगा। इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। अगर आपने मान लीजिए किसी लेटस से पनीर की सब्जी में नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, तो अब आप उसमें केचप डाल दीजिए, आप चीनी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, एंटी सॉल्ट करना है उसको आपको। व्हाट इट क्लियर? मान लीजिए कि आपने दाल बनाई और बहुत गाढ़ी दाल बन गई है, बॉयल थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वाटर ऐड करेंगे ना। तो वाटर जब हम ऐड करेंगे तो उसका डाइल्यूशन कम होगा, डाइल्यूशन कम होगा। और अगर वाटर ऑलरेडी ज्यादा एडेड है तो उसको कंसेंट्रेट करने के लिए क्या करेंगे? हीट करेंगे आप, ताकि वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाए। तो जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा तो वो कंसेंट्रेशन का दोस्त है कि डाइल्यूशन का दोस्त है? वाटर निकल रहा है दाल सही करने के लिए, तो किसका दोस्त हुआ वो? आपके कंप्यूटर पे वायरस आ गया तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लगाएंगे। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस का दुश्मन हुआ कि दोस्त हो गया? दोस्त कैसे हो गया भाई? वायरस कंप्यूटर में है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने डाल दिया, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस का क्या है? दुश्मन है, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है ना। तो सेल रिटर्न को आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लेस करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट तो डेबिट के साथ चला गया ना। फिर चिल्ड्रन पीपल आर गेटिंग इट और नॉट? जो Yes. वैक्सीन बनती है वायरस की, जैसे कोविड की वैक्सीन, तो आपकी बॉडी में वीक कोविड इन्वेक्ट किया गया और इतना ज्यादा इंजेक्ट किया गया, इतना ज्यादा इंजेक्ट कर दिया कि वो सो कॉल्ड हेल्दी वायरस पे अटैक कर दिया और उसने हेल्दी वायरस को भी
वीक बना दिया और बीमारी चली गई। तो एंटीडोट वुड बी ऑपोजिट, एंटीडोट वुड बी ऑपोजिट। तो आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगा, वो बॉडी का फ्रेंड है कि वायरस का फ्रेंड है? बॉडी का फ्रेंड है ना, बॉडी का फ्रेंड है, चलो अंडरस्टैंडिंग और नॉट, और वायरस का दुश्मन है, वो Yes, ऑपोजिट चल रहा है। तो क्रेडिट में सेल रिटर्न आप माइनस कर रहे हैं, तो वो ऑपोजिट हो रहा है क्रेडिट का, या क्रेडिट हो रहा है ऑपोजिट। तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या हुआ? डेबिट। और डेबिट साइड में जब आप परचेज रिटर्न माइनस करते हैं चिल्ड्रन, तो वो डेबिट का ऑपोजिट हो रहा है, डेबिट को कम कर रहा है वो। तो किस साइड पे जा रहा है? क्रेडिट पे जा रहा है ना। और क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं चिल्ड्रन? सेल्स देन क्लोजिंग स्टॉक purchase return. एंड नहीं, मैंने देखिए पूछा क्या आपसे, मैंने पूछा कि हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं, तो आंसर इज सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, सेल रिटर्न लेस हो गया। परचेज रिटर्न कहां पे लिखते हैं हम? डेबिट में माइनस करते हैं। तो डेबिट का माइनस मतलब वो किसका दोस्त है? समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली सो कॉल्ड वो यहां पे डेबिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में, क्योंकि वो ऑपोजिट में जा रहा है। सो बस यही एक चीज है जो बच्चे क्लोजिंग एंट्री में जनरली गलत कर देते हैं। सुनाई पड़ गया चिल्ड्रन? सुनाई पड़ गया? Yes, sir. सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वील राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट expenses, and thereafter children for incomes आप पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इनकम्स को अल्टीमेटली डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तभी तो आप पीएल में बाय इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते हैं। Is that understood? Yes, sir. Understood? Yes, sir. ट्रेडिंग अकाउंट में चिल्ड्रन आपका आंसर क्या आता है? What is the answer in trading account चिल्ड्रन? अरे ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर नहीं बता पा रहे। ग्रॉस प्रॉफिट Gross profit, gross loss, या ग्रॉस लॉस, और पीएल का आंसर क्या आता है? नेट प्रॉफिट या net profit. सो चिल्ड्रन ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पे वी हैपन टू राइट? Debit side. डेबिट साइड। एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड पे लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। Credit. सो जर्नल एंट्री बन गई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट चिल्ड्रन अपीयर्स वेयर व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट? नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल में, PL account. पीएल अकाउंट, वेरी गुड। किस साइड पे जाता है? डेबिट साइड। एंड Debit. Debit side. कैपिटल में ऐड करते हैं तो कैपिटल वुड इंक्रीज, और मॉडर्न रूल क्या पढ़ा था बताइए जरा कैपिटल के लिए? क्रेडिट द इंक्रीज। आई रिपीट, क्रेडिट द इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं? समझ में आई बात? चलो जीपी पे Yes, sir. Yes, sir. और एनपी पे हैश लगाइए और एस्ट्रिक ड्रॉ करके लिख लीजिएगा फॉर ग्रॉस लॉस पास द रिवर्स एंट्री, and for net loss same pass the reverse entry. समझ में आई बात? चलो people understood this? Yes, sir. टर्न Yes, वाली sir. आपको समझ में आ गई? मैं इसका एक Yes, आपको प्रैक्टिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तब आपके लिए ये ज्यादा यूटिलिटी कैरी करेगा। ध्यान से सुनिएगा। चिल्ड्रन सपोज ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000, परचेज की वैल्यू है लेट अस से 40,000, सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड इज 2 lakh and closing stock is 30,000. So 230 credit and 60 debit. What is your gross profit? 230 credit and 60 debit children. 170 आएगा आपका जीपी चिल्ड्रन, 170 आएगा आपका जीपी। Sir. बट अब अगर मैं आपसे बोलूं
कि परचेज की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, 40 में से 5 माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न एंड राइट 35,000 है, तो अब आपका जीपी 170 से चेंज हो जाएगा एंड इट वुड बी व्हाट नाउ, इधर टोटल था 2,30,000 और इधर था 55,000। अब बताइए जीपी की वैल्यू किधर आएगी? चलो जीपी की वैल्यू डेबिट साइड में कितनी आ जाएगी? चलो 2,30,000 minus 55,000. Won't it be 175? Yes, sir. Then won't it be 175? Yes, sir. पहले कितना आ रहा था आपका जीपी बच्चों जब आपने 40,000 की परचेज लिखी थी? तो earlier GP was what? 170. Now it is what? तो जब आपने परचेज रिटर्न माइनस कर दिया परचेज में से, द वैल्यू ऑफ परचेज गोज डाउन, क्रेडिट साइड का टोटल तो उतना ही है, तो वो हावी हो गया उसके ऊपर, और कम वैल्यू को जब लेस करेगा तो जीपी बढ़ेगा ना। जीपी आपका आता कैसे है? क्रेडिट माइनस डेबिट और डेबिट माइनस क्रेडिट। चिल्ड्रन, क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम, तो आंसर इज जीपी। तो जब आप 40 का परचेज माइनस कर रहे थे, योर ग्रॉस प्रॉफिट यूज्ड टू बी 170। अब जब आप 35 की परचेज माइनस करेंगे तो आपका जीपी कितना आ जाएगा? 175। तो परचेज रिटर्न की वजह से योर प्रॉफिट्स वेंट अप, दे वर सेम और दे वेंट डाउन। प्रॉफिट बढ़ा घटा कि सेम था? चलो आंसर, प्रॉफिट इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और इट वाज सेम? So GP is increased. Sir, increase. वेरी गुड, कुछ लोगों का बहरेपन का शिकार हो गया। वेरी गुड, जीपी इंक्रीज्ड। तो जीपी आता किसकी बदौलत है? फिर से बताइए। एक्सेस क्रेडिट माइनस शॉर्ट डेबिट। पहले 230 माइनस 60 कर रहे थे आप, व्हाट वाज योर आंसर? 170। अब 230 में माइनस कर रहे हैं आप 55, नाउ व्हाट्स योर आंसर? तो क्रेडिट एक्सेस डेबिट शॉर्ट, आंसर इज जीपी। चिल्ड्रन, जीपी अगर बढ़ा तो इसका मतलब यहां पे जब 5 कम हुआ तो इसने क्रेडिट को सपोर्ट कर दिया कि नहीं? क्रेडिट की वैल्यू अपने आप एक्सीड कर गई। पहले आपने 230 में से 60 माइनस किया था, तो आंसर कितना आ रहा था? 170। अब 230 में से आप कितना माइनस कर रहे हैं? 55। तो क्रेडिट की वैल्यू तो सेम है, बट डेबिट गिर गया, तो उसने क्रेडिट के एक्सेस को और एक्सेस कर दिया। पहले 230 minus 60 was what? 170. Now 230 minus 55 is what? Simple as that. तो क्रेडिट का वेटेज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो परचेज रिटर्न यहां माइनस हो रहा है, तो ये क्रेडिट का दोस्त है कि डेबिट का दोस्त है? क्रेडिट का दोस्त है। समझ में आया? इसीलिए हमने इसको ट्रेडिंग की एंट्री में क्रेडिट साइड में लिखा है। समझ में आई बात सबको? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Update this. Yes, sir. Hope so everybody understood the cross derivation कैसे हमने किया। तो ये मैंने इसीलिए आपको सिखाया बिकॉज एंट्रीज अगर मैं डायरेक्टली आपको बताता, इट वुड जस्ट हैव बीन लाइक अ पैरेट, आप रट लेते तोते की तरह। इन एंट्रीज का चिल्ड्रन सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, इनका कोई गोल्डन रूल नहीं है। गॉट इट क्लियर? कोई भी गोल्डन रूल, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ डेरिवेटरी एक्सप्लेन कर सकता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सर इनके लिए क्या रूल होगा? क्रेडिट फॉर क्लोजिंग द एक्सपेंस एंड डेबिट फॉर क्लोजिंग द इनकम। यहां पे भी वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट फॉर क्लोजिंग द एक्सपेंस एंड डेबिट फॉर क्लोजिंग द इनकम्स। क्योंकि एक्सपेंस बाय वर्च्यू ऑफ नेचर डेबिट होता है, तो जब क्लोज करेंगे तो क्रेडिट। इनकम बाय वर्च्यू ऑफ नेचर क्रेडिट होती है, क्लोज करेंगे तो डेबिट। क्लोजिंग एंट्रीज का चिल्ड्रन कोई भी गोल्डन रूल नहीं होता, सिर्फ एक जुगाड़मेंट रूल होता है बस। दाल ज्यादा सो कॉल्ड वाटरी हो गई है, बॉईल कर दीजिए। ज्यादा गाढ़ी है, पानी ऐड कर दीजिए। कोई कुकिंग का रूल नहीं है। अंडरस्टूड दिस रूल? पक्का? कंफर्म? तो देयर आर टू रूल्स। फर्स्ट रूल इज फॉलो द सेकंड वन एंड सेकंड रूल इज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट वन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्का? चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। Okay, sir. Okay, sir. सो चिल्ड्रन, टीएसजी वाले सेट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एससी शर्मा से, क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, मिल गया? जिसमें 6th वाले को रीडू करने को बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट से।
यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन क्लोजिंग एंट्रीज गिव क्लोजिंग एंट्रीज विद नरेशन फॉर द फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। नजर आ गया? चलो नजर आ गया। बट एक क्वेश्चन लोगों ने मेरे से नहीं पूछा, पता नहीं क्यों नहीं पूछा, नाराज थे इसलिए नहीं पूछा शायद। क्लोजिंग एंट्रीज सर आपने बता दी फॉर आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। सर बैलेंस शीट से कोई आपकी लड़ाई है क्या? बैलेंस शीट में चिल्ड्रन क्लोजिंग नहीं होती। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा। कांग्रेस का 80s में नारा हुआ करता था। तो जब तक असेट एंड लायबिलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट हैं दे विल अपीयर इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो सन है चिल्ड्रन, शाम को ढलेगा सवेरे फिर निकलेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? और ये सब क्या है सर? ये बरसात का पानी है, बरसेगा थोड़ी देर के लिए, सड़क गली नाले गीले रहेंगे, बाद में मिट्टी में सन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा और खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर क्लोज्ड चिल्ड्रन, बट बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटीज कभी भी क्लोज नहीं होते। तो देयर आर नो क्लोजिंग एंट्रीज फॉर assets, capital and liability, but there are closing entries only for expenses and incomes. इस बात में 99% सच्चाई है, 1% ये झूठ है। अब मैं उसको भी सच में कन्वर्ट कर देता हूं। The day you will sell all your business, I repeat children, the day you will sell or your business gets closed, आपको इन assets को, आपको अपनी liabilities को as well as capital को, इन्हें भी क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। बट वो दिन जीवन में सिर्फ एक बार आएगा। आई रिपीट, सिर्फ एक बार। इफ यू सेल इट टू समबडी, दैट समबडी विल गिव यू द मनी, यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? सो वो बायर आपका डेटर होगा जब तक वो आपकी एसेट खरीद के आपको पैसा दे नहीं देता। तो दैट डे जो आपके एसेट का डेबिट बैलेंस है वुड बी क्लोज्ड। लायबिलिटी का जो क्रेडिट बैलेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी क्लोज्ड। तो जिस दिन आपका बिजनेस सो कॉल्ड एंड अप हो जाएगा या उसे कोई खरीद लेगा, तो जब तक वो आपको पैसे दे नहीं देता है ही इज योर डेटर, आप डेबिट करेंगे उसे। और लायबिलिटी खत्म हो गई, क्रेडिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। एसेट्स हैड डेबिट बैलेंस, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और जब वो सर पैसे देगा हमें, तो पैसे देगा तो पैसा बैंक में आएगा। डेबिट द रिसीवर, द बैंकर्स, एंड क्रेडिट इस पर्सन ने हमें पैसा दे दिया। दैट डे इवन योर एसेट एंड लायबिलिटी वुड गेट क्लोज्ड। क्लास 12th में जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा बिजनेस फर्म का डिसोल्यूशन। तो वहां पे आपकी एसेट, लायबिलिटी, ये सब कुछ चिल्ड्रन क्लोज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट एज ऑफ टुडे हम एक कंटिन्यूड बिजनेस पढ़ते हैं where expenses and incomes direct and indirect, इन्हीं को क्लोज करके पहले जीपी पता लगता है फिर एनपी। तो बैलेंस शीट के आइटम्स की देयर हैपेंस टू बी नो क्लोजिंग एंट्री। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? समझ में? Yes, sir. चलिए Yes, sir. लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है? प्लीज ड्रॉ अ फुल पेज फॉर्मेट ऑफ जर्नल, a full page format of journal. As soon as it is drawn, put your hands up. As the format of journal is drawn, do mark the items in trial balance. कौन-कौन से expenses हैं और कौन-कौन सी incomes हैं। Asset liability की marking नहीं चाहिए। Let's start, children. Opening stock will belong to the category of what, children? Children, opening stock will belong to the category of what? Expense or income? Expense. डिस्काउंट डेबिट में है चिल्ड्रन, बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस एंड सेल्स इनकम। thereafter children returns में so called this is sale return and this is purchase return. carriage expense, factory rent expense, commission credit में तो income, insurance premium expense, salary expense, इससे कोई मतलब नहीं है। सो आफ्टर मार्किंग दिस ये भी क्लैरिफिकेशन हो गया कि ट्रेडिंग का क्या है और पीएल का क्या है। चलो तो ट्रेडिंग वाले में पहले टी मार्क कर लेते हैं हम लोग, इट वुड बिकम इजी। ट्रेडिंग में ये जाएगा, ये जाएगा, ये दोनों जाएगा। देन चिल्ड्रन वी हैव रिटर्न्स, कैरेज, फैक्ट्री रेंट, कमीशन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम वुड बी इन पीएल।
and salary as well in PL. इतना समझ में आ गया? तो let's do the first entry. We have opening stock, wages, purchase, then we have purchase return, sale return, carriage. चलिए, तो सबसे बड़ी entry यही होगी children. It's trading account debit to opening stock to sales return. Any queries on sales return? Clear हो गया? Reverse है. To purchases to carriage, सबके आगे अकाउंट लिख लीजिएगा. To factory rent. And credit items के लिए it's closing stock account debit, sales account debit, purchase return account debit to trading account. PL में जाने वाली इनकम सिर्फ एक थी, बट अभी आप ये एंट्री नहीं करेंगे. अभी आप चिल्ड्रन पहले ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे. इन दिस क्वेश्चन आवर जीपी वाज कमिंग 28,000, isn't it? तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर आपकी पीएल की इनकम्स, एंड पीएल में यू हैड एक्सपेंस इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सैलरीज. और उसके बाद आप वेजेस भूल गए क्या हम लोग? चलिए लिख लेते हैं वेजेस, नो प्रॉब्लम. टू वेजेस भी लिख दीजिए. और कुछ तो नहीं छूटा? देन पीएल में हमारे पास नेट प्रॉफिट है 16,500 का चल रहा है. सो फॉर दैट वील पुट द एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 16,500. सो इन एंट्रीज को याद रखिएगा. 11th में ये लीस्ट टेस्ट होती हैं, पूछी जाती हैं, बट 12th में चलना आपकी पढ़ाई ही यहीं से स्टार्ट होगी. सो देयर पीपल आर हाईली अमेज्ड टू नो कि क्लोजिंग एंट्री जैसा भी कुछ होता है बेसिकली. एनी क्वेरीज? This thing is well understood by all, that why only items of expenses and incomes need closing entry. Got it clear? And their net effect is profit or loss. So balance sheet items do not need them children because they continue to exist forever. और जब वो सेल होंगे अपने आप असेट खत्म हो जाएगी तो हम उसकी सेल की एंट्री करेंगे. Else जो असेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट करती रहेगी चिल्ड्रन, बैलेंस शीट में वो रहेगी और उसकी कोई भी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होगी. बैलेंस शीट के आइटम्स की नेक्स्ट ईयर चिल्ड्रन ओपनिंग एंट्री पास होती है रादर. और ओपनिंग एंट्री आपने पढ़ी है, वेयर वी यूज्ड टू डेबिट ऑल असेट्स, क्रेडिट लायबिलिटीज. आंसर आता था कैपिटल. एंड इफ असेट, कैपिटल, लायबिलिटी ऑल थ्री आर गिवन, डेबिट इज शॉर्ट तो गुडविल लिखते थे, और क्रेडिट शॉर्ट है तो रिजर्व. तो बैलेंस शीट के आइटम्स की ओपनिंग एंट्री होती है बट क्लोजिंग नहीं होती. ट्रेडिंग पीएल के आइटम्स की वी हैव क्लोजिंग एंट्री बट नो ओपनिंग एंट्री. सब लोगों को बात समझ में आ गई? So with this we in all complete our chapter called financial statements without adjustments.